No, sir. Yeah, exactly. Even as far as our school or college education is concerned, human memory is not a very much a discussed topic, well discussed topic. Hardly in science you might have come across some memory techniques, some human memory part, brain ke kuch part, maybe 8, 9, 10 standard science or maybe 11, 12 science you might have come across. But from competitive exam point of view, human memory techniques, yeah, we can keep things in mind by making mind maps. Very good. Mind maps is one of the important, you can say, एक method आपने बनाया. Our eye captures image. Our eye captures image falsely. Very good. वो भी है. Acronyms is again a good factor in that. Correct. So many of you already know about how to use memory techniques and all. So आज का अपना वही discussion है, how to have a memory technique. For some students it was a GS lecture, लेकिन मैंने आपको ये lecture में we are going to give memory techniques today. Some problem happened that so that faculty will be taking lecture afterwards. So today I am taking a memory technique session which will be useful for your GS जनरल स्टडीज ऑल्सो. ठीक है, जीएस के लिए भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा. ये मेमोरी टेक्निक सेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो वैसे बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है दैट एक्रोनिम्स आर देयर, आई कैप्चरिंग इमेजेस फैंटेसी फॉल्सली ऐसे दिया है उसके अंदर. देन वी कैन कीप थिंग्स इन माइंड बाय मेकिंग माइंड मैप्स. ये भी आपने अच्छी तरीके से दिया है. सो दैट्स इट. Now I would like to ask you few questions. देखो जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, the session today is on the basis of memory techniques. ये little bit different topic, थोड़ा अलग topic है but related with studies where you can do your GA study, general studies. बाद में mathematics वगैरह का पढ़ाई थोड़ा easily कर सकते हो on the basis of memory techniques. तो आज memory techniques हम लोग करने वाले हैं. Now can you tell me that human memory involves the ability to both preserve and recover information we have learned or experienced. Very good. Human memory is very much capable of that. But important thing is that there are many discrepancies in human memory. Human memory के अंदर बहुत सारे discrepancies है. So for example, it is very surprising that आपको आपका school की poem, your school poem you can remember, but you are not able to memorize your recent examination questions. Recent exams का theory you are not able to memorize, but school का जो poem है, या it might be possible that some 10 to 15 years ago आपने कुछ पढ़ा था, वो भी अभी भी आपको याद है. So what are the factors behind that? इसके पीछे के factors क्या है? Rhythm is there. Very good. The more we understand, the better we remember for long. Yes. तो ये सब कुछ है उसके अंदर. तो interest is one of the factor. The more and more we are interested, we tend to memorize the things. Fine. So human memory के ऊपर अपना सेशन होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी देखो ह्यूमन मेमोरी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज सिनेरियो. आज के सिचुएशन में क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन मेमोरी? बिकॉज यू कैन से आवर एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम इज अ मेमोरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इज मेमोरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. तो उसके लिए यू कैन से दैट मेमोरी बेस्ड एजुकेशन है तो इट इज इंपॉर्टेंट. ह्यूमन मेमोरी प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स अभी आप यूनिवर्सिटी के आंसर्स वगैरह लिखते हो तो उसके अंदर आप बोल सकते हो कि मेनी थिंग्स आर थियोरेटिकल इन यूनिवर्सिटी पेपर. ठीक है, तो ये सब थियोरेटिकल चीजें ध्यान में रखने के लिए तो ह्यूमन मेमोरी इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आई विल क्विकली आस्क यू सम क्वेश्चंस. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आप तुरंत आंसर देने की कोशिश करो उसके अंदर. ठीक है, दिस इज रिलेटेड विथ आई विल रिलेट इट विथ ऑल द सब्जेक्ट्स. जीएस के साथ हिस्ट्री साइंस के साथ भी मैं रिलेट करूंगा इसको. ठीक है, so my first question to you is what was that movie, one movie which is still popular? एक ऐसा मूवी है बहुत साल पहले आया था लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके डायलॉग्स अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है. व्हाट इज दैट मूवी? इट्स वेरी, मतलब इंडिया बोलेंगे तो वो मूवी सबके इसमें आ जाता है इन एनी कॉन्टेक्स्ट. बहुत पुराना मूवी है, नया मूवी नहीं है वो. इट्स ओल्डेस्ट मूवी. शोले. शोले. Yes, old movie is there, but still it is very much popular. Its dialogues are very popular. Okay, so of course नहीं, of course DDLJ भी बराबर बोला आप लोगों ने. Of course DDLJ is also okay. ठीक है.
Of course, DDLG comes in the list also, but Sholay and DDLG comes in the mid 90s and Sholay comes in 75s के टाइम में उसके अंदर नहीं नहीं फिर हेरा फेरी इज नॉट दैट मच, ठीक है. हेरा फेरी बोलते तो भी चलता था, आप फिर हेरा फेरी बोल रहे हो तो वो तो नहीं चलेगा उसके अंदर, ठीक है. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ शोले का एग्जांपल लेते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवी, ठीक है, ओल्ड मूवी, ओल्ड टाइम का 1975 1971 में शोले मूवी आया था. आई वांट टू टेल यू समथिंग ऑन दैट बेसिस. कैन यू टेल मी, चैट में लिखो, पूरा बोलो मत, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम, वॉइस का इश्यू हो जाएगा. यू कैन टेल मी दैट व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू फ्रेंड्स इन शोले मूवी. उसके अंदर लिखो चैट बॉक्स में. यस, all of you are able to answer, all of you are able to answer in that case, right? नहीं नहीं, टू फ्रेंड्स के बारे में, टू फ्रेंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. सो नाइस, सो आप सब लोगों ने आंसर दे दिया, जय एंड वीरू. नाउ यू कैन टेल मी दैट, ये तो आपने बोल दिया जय वीरू उसमें थे. व्हाट वाज द नेम ऑफ अ विलन इन दैट मूवी? वेरी गुड, विच इज स्टिल वेरी मच फेमस, विच इज स्टिल वेरी मच फेमस, राइट. अभी भी बहुत सारा फेमस है उसके अंदर. सिंह, गब्बर सिंह बोलते हैं उसके अंदर, राइट. तो ऑब्वियसली दैट इज करेक्ट. सी नाउ वन मोर क्वेश्चन ओवर देयर, एक और एक क्वेश्चन है उसके अंदर कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हीरोइन इन दैट मूवी. उस हीरोइन में उस मूवी में एक हीरोइन थी, उसका नाम इज वेरी मच ऑब्वियस, आप सब लोग दे रहे हो उसके अंदर, राइट. सो जो लोग बाद में ज्वाइन हुए उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि टुडेज आवर सेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी टेक्निक्स विच इज हेल्पफुल फॉर योर जीएस एज वेल एज, इसके लिए आपको यूज हो जाएगा उसका, ठीक है. मैं पीपीटी भी आपके साथ शेयर करूंगा. Then, what was the name of her, you can say, हॉर्स, मतलब उसके घोड़ी का नाम क्या था? बसंती जॉब बोल रहे हो, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर हॉर्सेस? वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं फटाफट, राइट. नाइस. सो वन मोर थिंग, अनदर वेरी मच फेमस कैरेक्टर फ्रॉम दैट मूवी हु इज मिसिंग. एक ऐसा कैरेक्टर है कि अभी हमारे डिस्कशन में आया नहीं है, बट वेरी पॉपुलर कैरेक्टर. यस यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. तो आप सब लोग ऐसे फटाफट आंसर दे रहे हो उसके अंदर. नहीं, ठाकुर इज मोर फेमस. तो और एक चीज, कैन यू जस्ट राइट सम फेवरेट डायलॉग्स फ्रॉम दैट मूवी? यू कैन राइट द फेवरेट डायलॉग्स फ्रॉम दैट मूवी. करेक्ट, एब्सोल्युटली. वेरी गुड. यस करेक्ट, वो परफेक्टली यू आर टेलिंग. Now, देखो, as far as you can remember the dialogues, very famous dialogues in that, and what was the one of the, you can say, song, एक मूवी में उसमें एक सॉन्ग था. What are the names of the popular song from that movie? एक मूवी में कुछ popular songs थे, what was their names? जब तक है जान ये दोस्ती. ऑफ कोर्स, एग्रेसिव आंसर्स, परफेक्ट. एक भी डेटा मिस नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, सरप्राइजिंगली करेक्ट. ये दोस्ती, देन यू सेड दैट होली के दिन, जब तक है जान. जब तक है जान तो एक दूसरी मूवी का भी नाम था ना, कब है होली. अच्छा, होली का वो तो डायलॉग के बारे में. नाउ यू कैन से दैट, नाउ कैन यू स्टूडेंट, कैन यू, डू यू रिमेम्बर दैट आपने जो आंसर दिया, ओके, डिड यू टुक मच एफर्ट्स टू आंसर दोस क्वेश्चन? कुछ एफर्ट्स लगा क्या आप लोगों को और इजीली आपको आ गया? वेरी इजीली यू कुड रिमेम्बर. वही आपको, देन व्हाई कॉन्ट्राडिक्टरी? सी, आप में से बहुत सारे लोग तो वे आर नॉट अलाइव आल्सो. आप में से बहुत सारे लोग तो उस टाइम पे अलाइव भी नहीं थे जब ये हुआ था तब, राइट? एम आई राइट? आप लोग तो ये भी नहीं थे ना, आप लोग तो जिंदा भी नहीं थे उस टाइम, करेक्ट? सो हाउ कम देन, ऑफ कोर्स बराबर ना.
तो फिर भी आप बोल सकते हो कि आप यू कैन एबल टू मेमोराइज इट नाइसली, आप बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज कर सकते हो उसको। सो व्हाट इज द सीक्रेट? तो अब ये जो सीक्रेट है ना मेमोरी का, वो मेमोरी का सीक्रेट हम लोग देखना चाहते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अभी जस्ट रिसेंटली आपने कुछ मूवी देखा है, सपोज यू हैव सीन द मूवी रिसेंटली, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि वो मूवी के बारे में अगर कुछ पूछोगे, सपोज आपने कल परसों ही कुछ मूवी देखा है और इट माइट बी हैपन दैट कि उस मूवी का कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को, ऐसा भी हो सकता है। We can easily memorize the visual scene things watching repetitively. इतना, हाँ, तो यही चीज है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो मूवी का आपको याद है, लेकिन अभी रिसेंटली इट माइट बी पॉसिबल, मेरे साथ भी ऐसा होता है, 3-4 दिन पहले मूवी देखा है तो उसका नेम्स एंड ऑल आई एम नॉट एबल टू मेमोराइज इट। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रिपीटेटिव वॉचिंग, ओके, विजुअलाइजेशन बाय वॉचिंग, और क्या है, बाय वॉचिंग, लिस्टिंग अगेन एंड अगेन, फेवरेटिज्म, वेरी गुड, फेवरेटिज्म इज अगेन आंसर बिहाइंड दैट। और बोलो, लिस्ट अगेन एंड अगेन का है, उसके अलावा सी, बट प्रॉब्लम क्या है, अनदर इशू क्या है, देखो अगेन एंड अगेन का है, लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा कि एक मूवी है, वो मूवी आप बार बार देखो, तो आप बार बार देखोगे क्या वो मूवी? ऑन व्हाट कंडीशन यू विल सी द मूवी रिपीटेटिवली? ऐसे में कोई भी मूवी दे दूंगा आपको, आप क्या वो बार बार मूवी देखोगे क्या? उसके अंदर विल यू सी दैट मूवी रिपीटेटिवली? शोले को रिपीटेटिवली देंगे, यू विल सी रिपीटेटिवली। आपको बाहुबली को रिपीटेटिवली देंगे, यू माइट सी इट रिपीटेटिवली। डीडीएलजे रिपीटेटिवली बोलेंगे तो यू माइट सी इट, लेकिन इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द मूवीज? या इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द मूवीज? योर आंसर? आंसर आपके चैट बॉक्स में, या नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द मूवीज। क्यूरियोसिटी दैट ऑल हैव वॉच, बट I didn't, so due to this make curiosity. Interest plays a very important role. If interest is there, there is no need to see it again and again. There is no need to see again and again. Okay. तो देखो अल्टीमेटली वही बोल रहा हूँ ना कि सभी मूवी के लिए एप्लीकेबल नहीं, इन द मूवीज इन विच यू आर इंटरेस्टेड यू माइट सी इट रिपीटेटिवली। ठीक है, तो यही सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले कि एग्जैक्टली क्या ह्यूमन मेमोरी किस बेसिस के ऊपर चलता है, ऑन व्हाट बेसिस, सॉरी, हाँ, तो ऑन व्हाट बेसिस ह्यूमन मेमोरी वर्क्स, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं आज। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन। तो आई थॉट कि चलो आपका अभी इनिशियल फेज सपोज लेक्चर्स का है, तो जीएस के कुछ लेक्चर्स के पहले व्हाई नॉट टू शेयर दोस सम सीक्रेट्स, मेमोरी सीक्रेट्स विथ यू। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को पता होगा, बट मैंने पीपीटी तो आपको शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, तो आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी आल्सो। ओके, सो अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। एज सुन एज आई विल शेयर माय स्क्रीन, आपको क्या करना है, आपको पिन का ऑप्शन प्रेस करना है। आशा सी, जो भी अभी मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रेस करके व्हाट यू कैन डू इज दैट, आशा सी का प्रेजेंटेशन, नॉट ऑन माय फेस, प्रेजेंटेशन पे जाके पिन का बटन प्रेस कर दो, सो दैट प्रेजेंटेशन स्टेबल रहेगा उसके अंदर। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। So somebody muted you. सर प्रेजेंटिंग हट ठीक है, गया। हाँ हट गया क्या प्रेजेंटिंग? वही बोल रहा हूँ, पिन का बटन प्रेस कर लो, मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। प्रेस द, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, आई गेस ऑलरेडी आई एम प्रेजेंटिंग यू। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ मेमोरी थ्रेड्स क्या, आप चैट बॉक्स में लिखो व्हाट आर द मेमोरी थ्रेड्स, कि सर मेमोरी अगर किसी का अच्छा नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो आप चैट बॉक्स में लिख के दे दो कि सर मेमोरी मेमोरी अगर नहीं है तो ये इश्यू हो सकता है सर। व्हाट आर दो इश्यूज? लॉस, कौन सा लॉस?
डिसीज कैसे होगा, मेमोरी नहीं है तो? डिसीज हो सकता है क्या विदाउट मेमोरी? हाँ, अभी है ना, प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना सबको? दिखा, देख लो जरा। दिख रहा है, पिन द दिख रहा है। प्रेजेंटेशन, पिन द प्रेजेंटेशन। हाँ, आई होप अभी और कोई बीच में डिस्टर्ब मत करो, खाली सुनो, बहुत कुछ इधर उधर मत करो, बिकॉज स्टिल दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट मच अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। तो आई एम आस्किंग यू द फेलियर, ओके, फेलियर इज देयर लेस मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्यों बोल रहे हो जेनेटिक? मैं रीजन नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रेजेंटेशन हिला नहीं है ना मेरा? इज इट प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू ऑल ना? Yes, sir. हाँ, पिन किया है तो अगर आपने पिन किया है तो विजिबल होगा, पिन नहीं किया है तो शायद कुछ इशू हो गया है किया है सर। presentation का। ठीक है, नहीं नहीं, पिन और किया है सर। अगर नहीं भी, विजिबल है सर। अगर क्या भी नहीं होगा ना, नहीं है तो अभी भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। सो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मेमोरी थ्रेड्स आप लोग बोल रहे हो, तो मैं उसके पीछे का रीजन नहीं बोल रहा हूँ। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड आप बोल रहे हो, ओके। एनी अदर थिंग लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड के अलावा? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, देन कंफ्यूजन। तो देखो, हम थ्रेड क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल थ्रेड बोलेंगे ना, तो अगर किसी स्टूडेंट का मेमोरी, पहली बात तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके उसका पूरा का पूरा, व्हाट यू कैन से दैट, स्कूल में उसकी पूरी, आई कैन से दैट, मतलब उसकी इज्जत निकल सकती है स्कूल में अगर उसका मेमोरी अच्छा नहीं है तो। डू यू एग्री विद दैट? आपके साथ भी, मतलब आपके साथ हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ होगा दैट स्कूल में अगर उसको बोलते थे कि कुछ होता है ना स्कूल में दैट, मराठी में उसको बोलते हैं कि पाठांतर बोलते हैं उसको, कि याद करना किसी पैराग्राफ को, और सब हेट करेंगे सब हेट करेंगे उसको। नहीं, हेट मतलब ही इज लुकिंग एट, ही इज परस्यूड एज अ डम स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट है एंड वो स्टूडेंट, अगर देखो ना स्कूल में होता है ना कि आपका एक ओरल एग्जामिनेशन होता है, ओरल एग्जामिनेशन में कुछ पोएम बोलने को बोलते हैं, कुछ पैराग्राफ बोलने को बोलते हैं, एंड सच थिंग्स हैपन, राइट? एंड अगर ये सिचुएशन है और वो इतने 100 लोगों के सामने कोई बच्चा, कोई 6-7 स्टैंडर्ड का आ रहा है और टीचर बैठा है, तो इट इज अ हॉरिबल सिचुएशन। सबने स्कूल में एक्सप्लेन किया, सबने स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज। ठीक है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट अगर मेमोरी में इश्यू है स्टूडेंट के, तो दैट स्टूडेंट का, पेरेंट्स का डिमोरलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो आपकी स्टूडेंट फेज के लिए। अभी स्टूडेंट फेज के बाद में, हाँ, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टुडे वी आर टेकिंग द मेमोरी टेक्निक सेशन व्हिच आर एप्लीकेबल टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्सक्लूसिव वन सेशन। आपको कभी हार्डली सच सेशन विल बी एक्सेसिबल टू यू। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि थ्रेट तो है मेमोरी का, कॉलेज लाइफ में थ्रेट है। 11th स्टैंडर्ड में आप देखते हो बोर्ड एग्जामिनेशन है, सीईटी है, वो भी मेमोरी के बेसिस के ऊपर है। अगर आपको याद नहीं है नाम तो आपका इश्यू हो सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। कॉलेज के ग्रेजुएशन में भी मुझे पता है यूनिवर्सिटी के जो भी पेपर्स रहते हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। मेमोरी के बेसिस के ऊपर होता है कुछ, राइट? मेमोरी नहीं है, राइट अ शॉर्ट नोट्स, राइट अ पैराग्राफ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के बेसिस के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर। और देखो, एजुकेशन में ही किसी का प्रॉब्लम हो गया, स्कूल लाइफ में ही किसी का पता चला कि इज नॉट अभी देखो, टैलेंट किसके बेसिस के ऊपर लोग बोलते हैं कि यू आर टैलेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। एंड आपके मार्क्स कौन से बेसिस के ऊपर मिलते हैं? आपको मार्क्स आपके थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस के ऊपर मिलते हैं, नॉट प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉट कंसेप्चुअल नॉलेज। अभी बहुत सारे लोगों को, आई एम डेफिनेटली श्योर कि न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ अगर मोशन पूछा जाए तो नो डाउट पॉसिबल कि आप बता पाओगे, लेकिन उसका एक्चुअल कंसेप्चुअली न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आ जाएगा आपको, लेकिन व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड लॉ? तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या था स्कूल में? न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ स्कूल में क्या होता होगा कि चलो ये बाय हार्ट कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में, एंड देन आपके बाद में इनर्शिया के बारे में, लेकिन उसके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ओके, फर्स्ट लॉ वाज रिलेटेड, उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या था, व्हाई एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला वाज देयर। तो कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ इज लैकिंग। नो डाउट आप बोल सकते हो न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट नॉट नेसेसरी सब लोगों को नॉट नेसेसरी सब लोगों को वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगा उसके अंदर। सो दैट इज अ इशू इन एजुकेशन सिस्टम, बट वी नेवर नो, अभी नया एजुकेशन सिस्टम आया है। सो आपके
नया न्यू एजुकेशन सिस्टम वेलकम, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेमोरी के ऊपर थोड़ा कम फोकस आना चाहिए और कंसेप्ट के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस आना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो देखो अभी भी आप बोल रहे हो कि भूल गए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आई एम श्योर कि सब लोग नहीं भूले होंगे, क्योंकि सब लोगों ने स्कूल में मे बी पॉसिबल इतनी अच्छी तरीके से फर्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अभी भी आपको याद आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। हाँ, दिखाई दे रहा है ना मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखा सबको? मेमोरी वॉइस सीक्रेट, ब्रेक हो नेक्स्ट रही है। स्लाइड। हाँ, हो जाएगा रेक्टिफाई, डोंट वरी। या नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आई नहीं अभी तक, वेट। हाँ, या आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। या सो नेक्स्ट स्लाइड इज विजिबल टू यू? यस, इज इट विजिबल? या सो यू कैन सी दैट अभी मैं बोलना चाहता हूँ मेमोरी सीक्रेट्स। तो आज मैं बात करने वाला मेमोरी सीक्रेट्स के बारे में। व्हाट इज द सीक्रेट? देखो, नॉट बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बात करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक बायोलॉजिकल मेमोरी सीक्रेट्स। लेकिन क्या बोल रहे हो? आई थिंक, देखो मैं फिर से एक बार करता हूं, आप लोगों को इतना ही ध्यान में देना है। वर्षा मस्के, बाकी लोग प्रेजेंटेशन मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। आई कैन सी वर्षा मस्के इज प्रेजेंटिंग, सो प्लीज डोंट प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंटेशन? सी एंड बाद में आप लेट ज्वाइन मत करो। सी आपको जो टाइमिंग दिया है उसी टाइमिंग के ड्यूरेशन में यू ट्राई टू ज्वाइन, क्योंकि ऐसे लेट ज्वाइन करते हैं तो मे बी टाइम, बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के टाइम पे प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन क्लिक करके ज्वाइन करते हैं, उसके वजह से इश्यू हो सकता है। ठीक है, राइट। सो नाउ अभी मेरा स्क्रीन दिखेगा, उसके ऊपर आप पिन का ऑप्शन प्रेस करो, जो लोग बाद में आए हैं वो लोग। ठीक है, जो लोग बाद में आए हैं वो लोग अभी अभी मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर पिन का ऑप्शन प्रेस कर दो उसके अंदर। ठीक है, ओके। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेमोरी सीक्रेट्स। मेमोरी सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले हमने डिस्कस किया, कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे थे लोगों को, राइट? हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लोगों को पूछे थे, जैसे शोले मूवी के बारे में हमने देखा था, सब लोगों ने आंसर दिया। देन हमने बोला कि व्हाई इट इज लाइक कि शोले मूवी आपको अभी तक याद आ रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, राइट? तो ये सब कुछ हमारा डिस्कशन हो गया है, राइट? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज अ मेमोरी सीक्रेट्स, किसके बेसिस के ऊपर अपना मेमोरी चलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोरी किसके बेसिस के ऊपर चलता है? बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीपल। लोगों के टाइप्स कौन से हैं ये अंडरस्टैंड कर लो। अभी यहाँ पे मैंने दिखा है कि यू कैन से विजुअल पीपल, ऑडिटरी पीपल एंड काइनेस्थेटिक पीपल। अब ये टाइप क्या है? व्हाट डू मीन बाय विजुअल पीपल? नाम से समझ में आ रहा है विजुअल पीपल का मतलब क्या होगा। विजुअल पीपल आर दोज पीपल, और देखो ये कब डेवलप होता है? इट डेवलप्स इन योर चाइल्डहुड। आपके चाइल्डहुड में ये डेवलपमेंट होता है। इसके बाद देखोगे ना, जो टॉयज रहते हैं छोटे बच्चों के, मोस्टली वो टॉयज कलरफुल रहते हैं, उसके अंदर विजुअल थिंग्स ज्यादा रहते हैं टॉयज के अंदर। ओके, तो इट इज डेवलप्ड इन अवर चाइल्डहुड। व्हाट डू मीन बाय विजुअल पीपल? विजुअल पीपल का ये मतलब होता है कि विजुअल पीपल कैन विजुअलाइज, वो देख सकते हैं खुद के फ्यूचर को या खुद के पास्ट को। एक्चुअली हम सभी लोग देख सकते हैं, इट इज कैपेबिलिटी है सब लोगों में कि अपना फ्यूचर देख सके, अपना पास्ट देख सकते, खुद को देख सके, पिक्चर्स देख सके। ये कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग करते नहीं है इसके लिए। एंड इफ यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन डिप्रेशन, इट इज पॉसिबल दैट कि दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज देयर बेटर फ्यूचर। वो अपना खुद का फ्यूचर विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसके लिए दे आर डिप्रेस्ड। तो विजुअल पीपल का के बारे में समझना है कि उनको देखना अच्छा लगता है। दे लाइक टू सी द मूवी, दे लाइक टू सी द क्रिकेट मैच, दे लाइक टू, मतलब देखना अच्छा लगता है उनको। अंडरस्टैंड? देन ऑडिटरी पर्सन क्या है, और उसके लिए उनके लिए लैंग्वेज भी हमें वैसे करना पड़ेगा। सो रैपो क्रिएशन का एक मेथड रहता है, तो वी यूज रैपो क्रिएशन में उनके विजुअल पावर्स का यूज करके हम लोग रैपो क्रिएट करते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऑडिटरी पर्सन का काम क्या रहता है? ऑडिटरी पर्सन इज जिनको सुनने में अच्छा लगता है, लाइक टू हियर। अभी बहुत सारे लोग आपके स्पेशली फादर्स का जो जनरेशन था अपने, उन लोगों को मैच देखना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मैच देखना अच्छा नहीं लगता, उनको कमेंट्री सुनना अच्छा लगता है। सच काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज ऑडिटरी पीपल। ओके, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल विजुअल, अभी देखो इसको बाद में मैं पढ़ाई के साथ रिलेट करने वाला हूँ, ऐसे मत बोलो कि इट इज आउट ऑफ स्टडीज सर क्या सिखा रहे हैं। आई एम गोइंग टू रिलेट इट विथ योर स्टडीज, जीएस हिस्ट्री के साथ भी मैं रिलेट करने वाला हूँ इसको। ठीक है, तो
अभी फॉर एग्जांपल सपोज एक कोई वाइफ है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, तो सपोज अ विजुअल वाइफ इज देयर, तो विजुअल वाइफ को क्या अच्छा लगेगा, हस्बैंड क्या करेंगे तो अच्छा लगेगा। सपोज कुछ ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है हस्बैंड, हस्बैंड कुछ अच्छा उसको मोबाइल के ऊपर कुछ ग्रीटिंग भेज रहा है विच इज वेरी मच गुड लुकिंग इन यू कैन से, दिखने में वो उसका मैसेज अच्छा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल थिंग्स। ऑडिटरी थिंग्स का मतलब क्या है, ऑडिटरी वाइफ को क्या अच्छा लगेगा, उसको हस्बैंड कुछ अच्छा बोल रहा है तो उसको सुनने में अच्छा लगेगा। शी विल नॉट गिव द प्रायोरिटी टू हस्बैंड क्या दे रहा है क्या दिखा रहा है उसके ऊपर, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द हस्बैंड्स गुड वर्ड्स। ये उसके पीछे का फंडा है ऑडिटरी पर्सन। काइनेस्थेटिक पर्सन का मतलब है कि काइनेस्थेटिक पर्सन को यू कैन से प्रैक्टिकल करना अच्छा लगेगा। मतलब कोई अगर क्रिकेटर है, क्रिकेटर को विजुअल पर्सन को क्रिकेट देखना अच्छा लगेगा, ऑडिटरी पर्सन को क्रिकेट का कमेंट्री सुनने में अच्छा लगेगा। काइनेस्थेटिक पर्सन बोलेगा कि मुझे देखने में और सुनने में मजा नहीं आ रहा, आई वुड गो डाउन एंड आई विल प्ले द क्रिकेट। ये काइनेस्थेटिक पर्सन रहेगा। तो अपना मेमोरी जो है, मेमोरी के ये तीन टाइप्स है, तीन टाइप के पीपल रहते हैं। कोई भी स्टूडेंट को एनालिसिस करो, स्टूडेंट हमेशा एक तो विजुअल स्टूडेंट रहेगा, ऑडिटरी स्टूडेंट रहेगा या काइनेस्थेटिक स्टूडेंट रहेगा। इसीलिए आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि प्रैक्टिकल में कुछ नहीं समझ में आता है, उनको 0% दे अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल। लेकिन उनको थेरी अगर उनको बाय हार्ट करने को बोलो तो दे कैन बाय हार्ट वेरी इजीली, दैट इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक मेमोरी। विजुअल पावर उनका अच्छा रहता है। पैसेज जैसे है, जैसे पैसेज मतलब जो कंटेंट बुक के अंदर दिखेगा वो कंटेंट वो दिमाग में प्रिंट कर देते हैं और वही कंटेंट वो पेपर के ऊपर लिखते हैं अपने आंसर शीट में। दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज विजुअल पीपल। काइनेस्थेटिक मतलब उनको प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है, दे बॉडी मूवमेंट्स फिजिकल मूवमेंट करना अच्छा लगता है, उनको प्रैक्टिकल करने अच्छा लगेगा, उनको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल अच्छा लगेगा, फिजिक्स प्रैक्टिकल अच्छा लगेगा, दे वुड लाइक टू प्ले द क्रिकेट, दे वुड लाइक टू डांस, राइट। ये काइनेस्थेटिक का मतलब है। विजुअल लोगों को मूवी देखने में मजा आएगा, ऑडिटरी लोगों को मूवी के डायलॉग सुनने में और सॉन्ग सुनने में मजा आएगा, काइनेस्थेटिक लोगों को बोलेंगे कि ये क्या मूवी देखने में और मुझे सुनने में मजा नहीं आ रहा है, व्हाट आई कैन डू इज दैट आई विल डांस और आई विल से मूवी जैसी मेरी लाइफ हो, मूवी जैसे ही मैं मेरे लाइफ में ये करूंगा, स्टंट्स वगैरह कुछ करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक पीपल। ठीक है। तो ये सब है। तो आपने बेसिकली मेमोरी के थ्री टाइप्स है, ये थ्री टाइप्स के लोग स्टूडेंट को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो तीन टाइप के स्टूडेंट दिखाई देंगे। अभी पहला सीक्रेट क्या है मेमोरी के पीछे, पहला सीक्रेट है कि कंसंट्रेशन। थिंग्स इन विच यू आर कॉन्सेंट्रेटेड यू टेंड टू मेमोराइज इट मोर। इट हैपेंस विथ योर सब्जेक्ट्स। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होगा, हिस्ट्री के लेक्चर सुनने में बहुत सारे लोगों का कॉन्सेंट्रेशन होगा, एंड इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ऐसे होगा कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट बोलेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं रहेगा उसके ऊपर। ज्योग्राफी का अगर उनको सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उनको बुक देख के ही ज्योग्राफी दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द सब्जेक्ट। सो it is a very natural thing that in one subject student is concentrated and in other subject student is not concentrated, right? तो इसके पीछे का आप क्या बोल सकते हो, इसके पीछे का फंडा क्या है कि इन सम सब्जेक्ट्स यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट, इन सम सब्जेक्ट्स यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, व्हाट इज अ फंडा बिहाइंड दैट? इसके पीछे का फंडा क्या है? या नींद आता है, करेक्ट बोला आपने, राइट। तो हिस्ट्री में कंसंट्रेशन हो रहा है एंड ज्योग्राफी में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज इंटरेस्ट, द रीजन बिहाइंड दैट इज इंटरेस्ट। तो द थिंग्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड, द थिंग्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड यू टेंड टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कौन सा, क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको तो क्रिकेट मैच आप टेस्ट क्रिकेट मैच दिन भर चलता है, टेस्ट क्रिकेट, वो टेस्ट क्रिकेट लोग दिन भर देखते हैं अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड कॉन्सेंट्रेटेडली देखते हैं वो लोग। एक्चुअली लुकिंग एक्सटर्नली इट इज अ वेरी बोरिंग सिचुएशन कि टेस्ट मैच देख रहे हैं, उसमें कोई बाउंड्री नहीं मार रहा है, कोई सिक्सर नहीं मार रहा है, द क्रिकेट इज वेरी स्लो, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट टेस्ट मैच यू टेंड टू सी द कंप्लीट डे टेस्ट मैचेस, पूरा का पूरा दिन आप टेस्ट मैच देखते रहते हो, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरेस्ट, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, करेक्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यू डू द थिंग्स बियॉन्ड योर पावर्स, यू डू द थिंग बियॉन्ड योर लिमिट्स, you do the things beyond your power, you do the things beyond your limits. Why? Because you are interested in those things. तो interest is important thing. तो जैसे आप हॉबीज का एग्जांपल दे सकते हो कि हॉबीज यू फुलफिल योर हॉबीज अनलिमिटेड टाइम के लिए आप हॉबीज फुलफिल कर सकते हो, राइट। तो ऑल दोस थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कहां से आएगा, इंटरेस्ट कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड, इंटरेस्ट कहां से जनरेट होगा?
पहले बोला कि कंसंट्रेशन होता है सर, लेकिन कंसंट्रेशन कहाँ से जनरेट होगा? कंसंट्रेशन जनरेट होगा इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कहाँ से जनरेट होगा? फ्रॉम वेयर द इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड। आप बोलोगे कि सर क्रिकेट में इंटरेस्ट है इसके लिए हम लोग टेस्ट मैच देखते हैं, लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट जनरेट कहां से हुआ? फेवरिटिज्म, वेरी गुड। फेवरिटिज्म के अलावा व्हेन वी हैव सेट द, हाँ अभी आप नजदीक आ रहे हैं, व्हेन यू हैव सेट द गोल। तो देखो इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा, इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा व्हेन यू विल एसोसिएट योरसेल्फ। जब आप खुद को एसोसिएट करोगे ना किसी चीज के साथ, जब आप खुद को किसी चीज के साथ एसोसिएट करोगे तब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मतलब इफ यू आर एबल टू एसोसिएट योरसेल्फ विद क्रिकेट, आप अगर खुद को क्रिकेट के साथ अगर एसोसिएट करते हो, आप अगर खुद को क्रिकेट के साथ एसोसिएट कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा आपका। ये स्टेप्स है उसके अंदर। तो द थिंग इज दैट, तो आपका बेस फंडा कहां से चालू होता है? तो देखो एक तो नेचुरल एसोसिएशन होता है बहुत सारे लोगों के साथ। कोई लोग मूवीज के साथ एसोसिएट करेंगे, कोई क्रिकेट के साथ एसोसिएट करेंगे, कोई फैशन के साथ एसोसिएट करेंगे, कोई जंगल के साथ एसोसिएट करेंगे, कोई पेंटिंग्स के साथ एसोसिएट करेंगे, राइट? तो एसोसिएशन, नेचुरल एसोसिएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसोसिएशन है तो कॉन्सेंट्रेशन, एसोसिएशन है तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन होगा तो दैट थिंग विल बी मेमोराइज्ड फॉर एवर। ये साइकिल, ये स्टेप्स बता रहा हूं मैं उसके अंदर, ठीक है? तो अभी एसोसिएशन का क्या है, एक तो आप डेलिबरेट एसोसिएशन भी कर सकते हो, एक तो आप डेलिबरेट एसोसिएशन भी कर सकते हो, और नेचुरल एसोसिएशन भी आप कर सकते हो। मतलब आप डिसाइड करके एसोसिएशन कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कि सर सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा हूं, अभी कल ही यूपीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, राइट? कल रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं यूपीएससी के, एंड महाराष्ट्र के, मुंबई के बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए उसके अंदर। तो मे बी पॉसिबल कोई स्टूडेंट वो न्यूज देखेगा, न्यूज देखने के बाद खुद को एसोसिएट करेगा, खुद को एसोसिएट करने के बाद उसको इंटरेस्ट क्रिएट होगा यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद वो जब पढ़ाई करेगा तब उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तब उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा उसके अंदर। दिस इज हाउ द प्रोसेस गोल्स। तो पहला स्टेप रहेगा एसोसिएशन। कोई भी चीज आपको परमानेंटली ध्यान में रखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसोसिएट करना पड़ेगा उस चीज के साथ। हो जाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं होगे तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कल न्यूज के साथ अगर आप एसोसिएट हो गए, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए, एमपीएससी के एग्जाम्स जो 4 वीक्स पहले रिजल्ट आया था उसमें कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, तो यू आर एबल टू एसोसिएट। तो एसोसिएशन इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे लोगों का इश्यू क्या है, अभी आप सब लोग अपने गोल के साथ एसोसिएट हो जाओगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एग्जाम आएगा, स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन निकलेगा, कुछ न्यूज आ रहा है, तो यू विल बी एबल टू एसोसिएट इट विद दैट, क्योंकि आपका है पहले से एसोसिएशन। एसोसिएशन है इसके लिए आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन है आपका, और बाद में आपका कॉन्सेंट्रेशन है इसके लिए आपका मेमोरी है उसके अंदर, ठीक है? तो ये साइकिल ध्यान में रखो। तो एसोसिएशन हो गया। अभी एसोसिएशन आप कैसे करवा सकते हो? देखो नेचुरली एसोसिएशन हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नेचुरली एसोसिएट नहीं हो रहे हो, आपको आपका मेमोरी पावर एनहांस करना है, तो यू शुड यूज कलर्स इन योर स्टडीज। अभी कलर्स कैसे यूज करोगे? डू यू रिमेंबर दैट छोटे बच्चे जो रहते हैं, छोटे बच्चों के जो बुक्स रहते हैं, उस बुक्स के अंदर ऑल द थिंग्स आर कलरफुल। एंड अभी तुम्हारे जो बुक्स देखेंगे, तुम्हारे बुक्स के अंदर एक भी चीज कलरफुल नहीं होती है। व्हाई इट इज सो? आपके जो भी FY SY TY के बुक्स रहेंगे, इंजीनियरिंग के बुक्स रहेंगे, या इंजीनियरिंग के बुक्स में तो कुछ इमेजेस रहते हैं कलरफुल, बट जनरली आप देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स रहते हैं, और छोटे बच्चों के बुक्स में कलर रहता है। इट इज व्हाई, बिकॉज आवर ब्रेन कैप्चर्स द कलर्स इजीली। अपना ब्रेन कलर्स को कैप्चर करता है इजीली। इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग तो हो जाता है, या टू मेमोराइज फास्टर इन चाइल्डहुड फॉर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी, बिकॉज दे नीड टू गेट इंटरेस्ट इन दैट। देखो तो वही है, तो कलर है ना, अपना ब्रेन कलर को बहुत इजीली कैप्चर कर देता है। कोई भी चीज देखो आप, यू डोंट टेंड टू फॉरगेट द कलर्स इजीली। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अपने पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा कलर्स इनकलकेट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे नोट्स क्रिएट करते हैं, वो नोट्स का जो टाइटल होता है, नोट्स का टाइटल वो ब्लू कलर में लिखेंगे, बाद में शॉर्ट नोट रहेगा तो रेड कलर में लिखेंगे, उसके अंदर का जो टेक्स्ट पैराग्राफ है वो ब्लैक कलर में लिखेंगे। ऐसे लोग देखे होंगे अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में, ओके? अदरवाइज बुक्स जब वो पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने के टाइम पे वो मार्कर यूज करेंगे, हाइलाइटर यूज करेंगे, और पूरा बुक कलर से भर देंगे। ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे, करेक्ट? मतलब स्ट्रेंज थिंग, मतलब पहले तो मुझे नहीं समझ में आया करता था कि ये क्यों होता है, तो बट ऐसा है कि दे कीप ऑन डूइंग दैट। वो ऐसे लोग करते रहते हैं, वो पूरा का पूरा बुक कलर से भर जाता है उनका। मार्कर, येलो मार्कर यूज करते हैं, ऑरेंज मार्कर, पिंक मार्कर,
ओके ऐसे कुछ चीजें वो यूज करते हैं, गोल्डन कलर, कुछ लोग गोल्डन कलर यूज करते हैं, एंड समवेयर डाउन द लाइन इट इज रिलेटेड विद द मेमोरी, मेमोरी के साथ वो रिलेटेड है, यू कैन मेमोराइज द थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म। ये हुआ उसका। देखो मोशन, अभी क्या है कि अभी सपोज ये प्रोसेस है, स्पेशली इंजीनियरिंग या अभी जो भी साइंस के लोग रहेंगे, अभी जो भी आपके लेक्चर्स चलते हैं, पॉसिबल होगा कि अगर कोई मोशन के हिसाब से लेक्चर दिखा रहा है, एनिमेटेड फॉर्मेट में अगर लेक्चर दिखा रहा है, तो इट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। फॉर एग्जाम्पल स्विंग मशीन का ये मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है, ये स्विंग मशीन का मैकेनिज्म है, कपड़े सिलने का मशीन। लेकिन ये अगर आपको हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने को बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक्सप्लेन द सीविंग मशीन मैकेनिज्म इन वर्ड्स, इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट। क्या एक्सप्लेन करोगे आप? द नीडल इज कमिंग डाउन, द नीडल इज कमिंग अप, एंड सर्कल इज अराउंड गेटिंग राउंड एंड सम लॉ, एक्सप्लेन, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन सच यू कैन से सिचुएशन, राइट? तो अपना मेमोरी क्या है, अपना ब्रेन टेक्स्ट कैप्चर नहीं करता है, अपना ब्रेन क्या कैप्चर करता है, मोशन कैप्चर करता है। तो ट्राई टू यूज मोर एंड मोर एनिमेशंस इन योर स्टडीज। अगर आप कोई बायोलॉजी का साइंस का पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर एनिमेटेड वीडियोस देखने की कोशिश करो। मैं अभी एक आपको वेबसाइट देता हूं, अंडरस्टैंडेड वेबसाइट, शिक्षा.com, शिक्षा.com का एक वेबसाइट है, शिखर नहीं सॉरी शिक्षा.com। इसका यूट्यूब पेज है, इसके यूट्यूब पेज के ऊपर जाओगे ना, एवरी साइंस इज इन एनिमेटेड फॉर्मेट, बहुत ही अच्छा यूट्यूब पेज है। तो मैं क्या बोल रहा था, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए, मैं बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग मेमोरी टेक्निक्स के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाउ टू अप्लाई मेमोरी टेक्निक्स इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, आपके कोई भी पढ़ाई में मेमोरी टेक्निक्स कैसे यूज करना है, ये आज हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर। तो मेमोरी के कुछ सीक्रेट्स दिए मैंने, जैसे मोशन बोला, कलर बोला मैंने, कलर इज अ सीक्रेट, एसोसिएशन क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था, इंटरेस्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन किया मैंने, कंसंट्रेशन, कब कंसंट्रेशन होगा, तो जब इंटरेस्ट होगा तब कंसंट्रेशन होगा, इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप एसोसिएट करोगे उस चीज के साथ, तब आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर, और कैसे एसोसिएट करोगे, तो कलर्स के साथ यू कैन एनहांस योर मेमोरी, मोशन के साथ ट्राई टू यूज मैक्सिमम मोशन इन योर स्टडीज, आपके स्टडीज में मैक्सिमम मोशन यूज करने की कोशिश करो। उसके बाद में साइज इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, साइज भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसके अंदर। अब देखो ना, जो भी चीज बड़ी रहती है, बड़े हैंड राइटिंग, फॉर एग्जांपल आप छोटे बच्चों का बुक्स देखोगे, तो छोटे बच्चों के बुक्स के अंदर यू विल सी अ ह्यूज अमाउंट, अ ह्यूज साइज लेटर्स, ए के लिए, कैपिटल ए के लिए पूरा का पूरा पेज रहता है उनका, रेड हैंड राइटिंग, पूरे रेड कलर में वो कैपिटल ए लिखा रहता है, ए फॉर एप्पल, बी नेक्स्ट पेज के ऊपर बी रहता है। व्हाई? बिकॉज साइज मैटर्स। वो छोटे बच्चों का विजुअल सेंस इंक्रीज करने के लिए वो बड़ा साइज यूज करने की कोशिश करते हैं, एंड इट इज बिट नेचुरल दैट साइज अगर बड़ा होगा, इट इज बिट नेचुरल दैट अगर बड़ा साइज होगा तो बड़ा साइज यू वी टेंड टू मेमोराइज इजीली, इजंट इट? कोई पर्सन बहुत हाइटेड पर्सन है, तो वी टेंड टू मेमोराइज दैट पर्सन, राइट? मतलब हाइटेड है और शॉर्टर है, तो शॉर्टर वाला पर्सन को भी हम लोग मेमोराइज करते हैं। तो साइज नॉट नेसेसरी बिग साइज, छोटा साइज रहेगा तो भी हम लोग उसको मेमोराइज कर सकते हैं, इवन इफ द साइज इज लेस वी कैन मेमोराइज दैट पर्सन, ठीक है? तो साइज मैटर्स अ लॉट। तो अपने जो भी आप मेमोरी टेक्निक्स यूज करोगे तो उसके अंदर साइज फैक्टर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। देन साउंड, अभी साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखते हो कि आपको बहुत सारे सॉन्ग्स याद आते हैं, आपको मूवीज के सॉन्ग ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाते हैं, आपको खुद को नहीं समझता कि आप कब वो सॉन्ग्स के बारे में गुनगुनाते हो खुद से। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि साउंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर मेमोरी साउंड, आवर मेमोरी कैचेज द साउंड वेरी इजीली। एंड वन मोर सीक्रेट इज दैट योर ब्रेन memorizes the things related with you। ये एसोसिएशन नाम का जो मैंने फंडा बोला था, योर ब्रेन कैचेज द थिंग्स रिलेटेड विथ यू इजीली। आपके लिए, आपके साथ अगर कोई चीज आप एसोसिएट करोगे ना, आपको आपका ब्रेन उसको इजीली कैप्चर करेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद का बर्थडे तो कभी भूलते नहीं हो, बर्थडे आने के यू कैन से 1 वीक 1 मंथ पहले से ही आपका बर्थडे प्रिपरेशन चालू हो जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, करेक्ट? बराबर ना? मतलब बहुत सारे इसको देखते हैं, मैं रिलेटिव्स में देखते हैं, फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स का बर्थडे आता है तो वन मंथ पहले से ही या 2 मंथ्स पहले से एडवांस प्रिपरेशन चालू हो जाता है। और कोई बॉय का बर्थडे होता है तो मतलब हार्डली कपल ऑफ, हाँ आ जाएगा वॉइस प्रॉपर, डोंट वरी। और कोई बॉय का बर्थडे रहता है तो हार्डली कपल ऑफ डेज एगो उसका प्रिपरेशन चालू हो जाता है, उसी दिन मॉर्निंग से शुरू हो जाता है उसके अंदर। अभी ऐसा क्यों यू फॉरगेट, लेकिन ट्रुथ तो है, ये ट्रुथ तो है, ओके ये ट्रुथ तो है।
बॉयज आर नेवर टू मच कंसर्न अबाउट देयर बर्थडेज, बट गर्ल्स को देखा जाए, विमेन को देखा जाए तो दे आर टू मच एक्साइटेड फॉर देयर बर्थडे, सो वन मंथ पहले से चालू करते हैं. सो थिंग इज दैट द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विथ यू कैन मेमोराइज इट इजीली. लेकिन कोई दूसरे के साथ कोई रहेगा, किसी दूसरे का बर्थडे तो मे बी स्पेशल पर्सन नहीं होगा, तो यू डोंट इजीली मेमोराइज, आप इजीली मेमोराइज नहीं करते उसके अंदर. ठीक है, तो आपसे तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है. अभी सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि सपोज मदर इज देयर और उसका एक कोई बेटा है, मदर है और उसका बेटा है, और उसका बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है. सपोज 6th स्टैंडर्ड में उसका बेटा है, ही इज नॉट स्टडिंग एट ऑल, बट मदर नोज दैट ही इज टैलेंटेड. अगर वो थोड़ा पढ़ाई करेगा तो उसको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मदर नोज एवरीथिंग प्रॉपरली, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई करने को बैठ नहीं रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक दैट मदर को क्या करना चाहिए उसको. मदर नोज ही इज अ टैलेंटेड, उसको मार वगैरह के तो पूरा चीज और बिगड़ जाएगी. उसको अगर मारपीट करेंगे, उसको अब्यूज करेंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू स्पॉइल. लेकिन उसको पता है कि वो अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो ही इज गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. व्हाट दैट मदर शुड डू विद दैट चाइल्ड. इंटरेस्ट बिल्डअप, कैसे इंटरेस्ट बिल्डअप करोगे. उसको प्यार से क्या समझाए, प्यार से समझाए कि नहीं हो रहा है वो, मोटिवेट या मोटिवेशन. अभी मोटिवेट कैसे करोगे उसको, मोटिवेट कैसे करेंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा कि मदर बोलती है कि यू डू स्टडीज, यू मदर एक टारगेट देगी अपने बेटे को कि 90% मार्क्स लेके आओ, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट गियर वाला साइकिल. इफ यू आर गेटिंग 90% मार्क्स, मैं आपको गियर वाला साइकिल लेके दूंगी. तो क्या होगा, तो वो स्टूडेंट के इसके अंदर कुछ चेंज होगा क्या उसके अंदर. फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड एंड इट इज एप्लीकेबल. लालच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. आपको भी, आपके एज को भी लालच एप्लीकेबल है, आपके एज को भी लालच एप्लीकेबल है. अगर सपोज आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट आता है और प्लेसमेंट में आपको प्रोविजनल सिलेक्ट किया गया, 5 लाख 6 लाख पर एनम का पैकेज दिया गया आपको प्लेसमेंट की सेल से, और आपको बोला कि वी आर गिविंग यू प्रोविजनल ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू, वी आर गिविंग यू प्रोविजनल जॉब, लेकिन क्राइटेरिया इज दैट कि आपको ग्रेजुएशन में यू नीड टू गेट 75%. तो यू विल बी डेफिनेटली, अगर इतना पढ़ाई नहीं करते थे उतना पढ़ाई आप करोगे. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथ में जॉब है. तो दैट थिंग्स वर्क्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेजेस. सब स्टेजेस के लिए ये एप्लीकेबल है. मॉम शुड ट्राई टू मेक हिज स्टडीज इंटरेस्टिंग इन गेम्स फॉर्म. सो देखो प्रॉब्लम क्या है कि मेंटेलिटी में प्रॉब्लम है. उसको पढ़ने का ही नहीं है, पढ़ने का ही नहीं है तो वो क्यों बैठेगा. उसको पता है कि ये मम्मी ने कुछ लाया है, टॉयज वगैरह कुछ गेम्स लाए, उसका मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होने वाली है. तो अल्टीमेटली उसका मोटिव चेंज करना इंपॉर्टेंट है. यही चीज मैं आपको भी बोलता हूँ. सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, बैंक पीओ का प्रिपरेशन करना है, तो पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो. अपना माइंडसेट के अंदर वो हंगर, वो मोटिवेशन, और आप क्या बोल सकते हो कि वो एनर्जी, दैट फायर, वो लेके आओ आप खुद के अंदर. अभी कैसे लेके आना है वो आपके हाथ में है. मदर, मैंने जैसे सिंपल एग्जांपल बोला, मैंने मदर को क्या बोला कि यू गेट 90%, आई एम गोइंग टू गिव यू मोबाइल, और यू गेट 90%, आई एम गोइंग टू गिव यू गियर साइकिल. दैट्स इट. ये बोलेंगे काम हो जाएगा मदर का, बिकॉज शी नोज हर स्टूडेंट इज अ टैलेंटेड स्टूडेंट. वो टैलेंटेड बच्चा है, उसको पता है उसके अंदर. ठीक है, बाद में वो स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करेगा, विल पावर से पढ़ाई करेगा. वो स्टूडेंट क्या करेगा, खुद के साथ एसोसिएट करेगा. दैट स्टूडेंट विल बी एसोसिएटिंग विथ हिम. Okay, if I am studying this history, I am going to get the bicycle. तो वो क्या कर रहा है, वो हिस्ट्री को बाइसिकल के साथ एसोसिएट कर रहा है, हिस्ट्री को वो साइकिल के साथ एसोसिएट कर रहा है. वो हिस्ट्री को मोबाइल फोन के साथ एसोसिएट कर रहा है. उसके सामने हिस्ट्री नहीं है, उसके सामने मोबाइल फोन है, बट ही इज लर्निंग एंड ही विल गेट द गुड मार्क्स इन दैट. तो ट्राई टू स्टार्ट एसोसिएटिंग थिंग्स विथ योरसेल्फ. आप खुद के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करो. यूनिक थिंग्स वी ऑलवेज टेंड टू मेमोराइज. जैसे महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट था, दैट इज अ वेरी यूनिक मूवमेंट, एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हो कि इतने सारे लड़ाई वगैरह हो चुके हैं. फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया होगा. ठीक है, बट सर इजंट दैट बैड, लाइक ही विल नॉट बी लर्निंग टू लर्न बट गेट समथिंग. हाँ, तो बैड तो है ही ना, बैड तो ही ऑब्वियसली. अभी क्या करें, अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जिसमें आपको 90% के अबव आएंगे तो आपको बेटर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. अभी सिस्टम ही ऐसा है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट केस. ठीक है, बट अल्टीमेटली मदर को क्या है, मदर को गुड और बैड से मतलब नहीं है. लर्निंग के लिए किसी को मतलब नहीं है. मदर को क्या चाहिए, 90% मार्क्स चाहिए, दैट्स इट. तो जो भी है अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स. तो यूनिकनेस इज इंपॉर्टेंट. कि देखो कोई भी चीज यूनिक होगी तो आपको इमीडिएटली यू कुड एबल टू मेमोराइज इट. तो ट्राई टू मेक द थिंग्स इन अ यूनिक वे. पढ़ाई को एक यूनिक वे से करने की कोशिश करो.
वियर्डनेस, अपने पढ़ाई के अंदर वियर्डनेस लेके आओ. फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि सपोज एक पर्सन है, अभी नॉर्मल पर्सन तो किसी को ध्यान में रहता नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपने ऐसा पर्सन देखा कि उसको 2 हेड्स है, अ पर्सन विथ 2 हेड्स, you are always lifetime you are going to memorize the face of the person, you are going to memorize the place, you are going to memorize the time, you are going to memorize the context. आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा जब आप 2 हेड वाला पर्सन देखोगे तो. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वियर्डनेस. वियर्डनेस मैटर. फन ऑल्सो मैटर्स. दूसरी चीज है फन. कोई भी चीज फनी होगी ना, दोस फनी थिंग्स आर ऑलवेज मेमोराइज. ये देखो, ये सब जो भी फैक्टर्स बता रहा हूं ना, ये सब फैक्टर्स आपको यूज करने हैं. वॉट एवर फैक्टर्स आई एम टेलिंग टू यू, वो फैक्टर्स आपको यूज करने हैं खुद के पढ़ाई के अंदर. कैसे मैं आपको बोलने वाला हूं उसके अंदर, बट ये पॉइंट्स ध्यान में रखो कि क्या आपको ध्यान में रखना है. तो फन ध्यान में रखना है उसके अंदर. ठीक है, रिदम्स एंड सॉन्ग्स, जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि सपोज जनगण मन है, अभी जनगण मन अधिनायक जय इज नॉट अ वेरी सिंपल, ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है जनगण मन का, बट इट इज ऑल ऑफ अस नो दैट, सब लोग ये कर सकते हैं, जनगण मन मेमोराइज कर सकते हैं. The reason behind that is repetition is of course a reason, लेकिन rhythm and song है ना, जनगण मन अधिनायक जय है, so there is a specific rhythm, there is a specific repetition. That's why all of us know the national anthem of India and can is by heart. और स्कूल में भी रोज बोला करते थे, तो by heart हो गया अपना. अभी इसको आप क्या, can anyone would like to try the rhythm for this in 1400? कोई आपका चेहरा देख नहीं रहा है, तो without any hesitation you can create a rhythm and song for this sentence. This is a history sentence. Come on, I want from you. कोई तो बोले, rhythm के साथ बोले. क्या हुआ नो सर? rhythm के साथ बोलो उसको. देखो ऐसे तो वही चीज है ना, यही तो सिखा रहा हूं आज मैं. Anyone, कोई 1492 Columbus sailed the ocean blue. वाह, वेरी गुड. देखो अभी मुझे पता भी नहीं चला कि किसने गाना गाया, मुझे पता भी नहीं चला. अच्छा, एनीवन एल्स? ट्राई करो ना, इसमें क्या डरने की बात नहीं. ऑनलाइन है, कोई किसी का चेहरा नहीं देख रहा है, कोई कौन बोला वो भी नहीं समझ में आएगा. In 1492 Columbus sailed the ocean blue. अच्छा, गुड. सूरज देकाड़े. ओके, और बोलो. कोई तो अच्छा बोलो ना, अच्छा सुनने में और अच्छा लगे, लाइफ टाइम मेमोराइज हो जाए, ऐसा भी कोई तो बोलो. अच्छा, आप लोगों ने भी अच्छा बोला है, और बोलो कुछ मेमोरेबल. अभी वही डिफरेंस है ना. आप बोलोगे 1492 कोलंबस सेल्ड ओशन ब्लू, ऐसे आप थ्योरेटिकली याद रखने की कोशिश करोगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स. अभी इसमें एक इशू क्या है, इसमें अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपको रिदम करने के लिए. आपको अच्छा, अभी यहाँ पे राइम भी है, टू एंड ब्लू को राइम किया है, यहाँ पे टू एंड ब्लू को राइम किया, तो इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. एक ही बार आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा. in 1492 कोलंबस सेल्ड द ओशन ब्लू, तो राइम एंड रिदम आने की कोशिश की आपने. उसके बाद में देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शन. डिसप्रपोर्शन नाम का एक फैक्टर रहेगा. मतलब आप अपने स्टोरीज में, आपके पढ़ाई में डिसप्रपोर्शन लाने की कोशिश करो, एक्सट्रीम वेरिएशंस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि एक्सट्रीम इमोशंस के बेसिस के ऊपर जब आप पढ़ाई करते हो या कोई भी चीज करते हो, तो यू डू दैट थिंग परफेक्टली, आप वो चीज में जीत जाते हो. कोई भी चीज आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट हुआ कि किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, या किसी ने आपको कुछ बहुत बड़ा आपका अपमान कर दिया, उसके बाद में यू डिड समथिंग बेस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम वेरिएशंस एंड इमोशंस. ये बहुत बड़ा मैटर है. तो आप क्या करो कि कोई भी चीज, पढ़ाई को अपने एक्सट्रीम वेरिएशंस और इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो. अब ये जो अपने देखते हैं कि गरीब घर के लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं, बराबर. इससे आप देखते हो कि अंसार शेख जैसा है, कि अंसार शेख यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था. ईरा सिंगल का मैं एग्जांपल देता हूँ कि ईरा सिंगल, इवन शी वाज फिजिकली हैंडीकैप्ड, शी क्वालिफाइड इनटू द यूपीएससी. तो ये क्या है कि देयर आर एक्सट्रीम इमोशंस. उसके पीछे का, अब देखो आपके जैसे लोग नहीं सिलेक्ट होते एग्जामिनेशन में. तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे कॉमन घर के लोग हैं जिनको सब कुछ ठीक ठाक कंडीशन है, ऐसे लोग नहीं सिलेक्ट होते हैं उसके अंदर, करेक्ट. लेकिन ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, ऐसे लोग हमेशा सिलेक्ट होते हैं. व्हाई? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है गाइस यहाँ पे.
यहाँ पे पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे वो कुछ अलग स्टडी मटेरियल पढ़ते होंगे, हम कुछ अलग स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, उनको कोई अलग टीचर पढ़ाते होंगे, हमें कोई अलग टीचर पढ़ाते हैं, इट डजंट मैटर, बिकॉज आज इंटरनेट का जमाना है। आपको जो भी लेक्चर्स चाहिए आप यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। तो रिसोर्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज इन द माइंडसेट ऑफ यू। जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका माइंडसेट और जो लोग नहीं सिलेक्ट होते उनका माइंडसेट, देयर इज अ बिग डिफरेंस। And that mindset is, most of the time that mindset is related with extreme variations and emotions. तो आप कोई भी चीज अपने इमोशंस के ऊपर लेके आओ, कोई भी चीज अपनी इमोशंस के ऊपर लेके आओ। विराट कोहली इज अ सक्सेसफुल बैट्समैन, विराट कोहली इज अ सक्सेसफुल बैट्समैन, बट समवेयर डाउन द लाइन उसके एक्सट्रीम वेरिएशंस उसको फेवर करते हैं, उसको विराट कोहली को, बिकॉज ही ऑलवेज टेक्स हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव्स। तो इट हैज हेल्प्ड हिम। Saurav Ganguly is remembered as one of the best captains of India. Why? Because Saurav Ganguly extreme emotions था उसके पास, ठीक है? Yeah, they have emotions that आदि में आना जरूरी क्या है। एनीवेज, सो एक्सट्रीम इमोशंस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक्सट्रीम इमोशंस आपका होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? देन अभी पेगिंग टेक्निक है, पेगिंग टेक्निक के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा पेगिंग टेक्निक क्या होता है। फिलहाल तो मैं आपको चंकिंग मेथड बताता हूँ। अभी चंकिंग मेथड आपको पता होगा कि देखो अभी असैसिनेशन वर्ड है, मैं उसके बारे में बोलूंगा, लेकिन हैव यू एवर सीन योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड? आपने कभी खुद का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देखा है क्या? आपने खुद का क्रेडिट और डेबिट कार्ड देखा है क्या आपने? क्या है क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऊपर? व्हाट इज स्पेशलिटी ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स? एक कॉल करना है मुझे स्टूडेंट्स। क्या स्पेशलिटी क्या है, नंबर क्या? इट इज इन अ चंक फॉर्मेट। क्रेडिट डेबिट कार्ड है ना, चंक फॉर्मेट में रहता है, बराबर? हाँ, हेलो सर। हाँ आहे सर, लेक्चर आहे ना तुमचं 7:15ला, मी लिंक पाठवेन तुम्हाला, ठीक आहे? अरे सर राहू दे ना, जसं होईल तसं घेऊ आपण, मोबाईल वरती घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही, ठीक आहे? हा घेता येईल टॅबवर, काय प्रॉब्लेम? गुगल मीट्स केले ना डाउनलोड तुम्ही? अरे सर ठीक आहे, आपण काय नुसतं चालू घेऊन सोडलं तरी चालेल, मला तरी फॉर्मॅलिटी झाली तरी ठीक आहे, ठीक आहे? आपण जसं आहे तसं कंडक्ट करू, ठीक आहे? तुम्हाला लिंक पाठवतो मी, माझं पण लेक्चर सुरू आहे आता, म्हणून तुमचा कॉल उचलत नव्हतो, ठीक आहे? ठीक आहे सर, मोबाईल फोन आहे का तुमच्याकडे? हा मग मोबाईल मध्ये चालेल ना, मग काय प्रॉब्लेम नाहीये, ठीक आहे? आणि टॅबची बघा ना कुठे नेट असेल काय त्याच्यामध्ये, बघा काहीतरी आहे, वेळ आहे अजून 7:15 पर्यंत वेळ आहे, ठीक आहे? ठीक आहे, लिंक पाठवून होईल आणि काय लगेच सोडलं तरी चालेल, अर्ध्या तासात सोडायचं, बोलायचं बाबा नेटचा प्रॉब्लेम आहे, पण ते प्रॉब्लेम आहे त्यांना बरोबर नाही वाटत ना, लेक्चर नाही झालं तर प्रॉब्लेम होतो मग, ठीक आहे? माझं पण चालू आहे, 1 तासापासून मी लेक्चर मध्येच आहे, तुमचे पण बघितले मी, ठीक आहे? बाय. हा हा, येस हॅलो, हाँ सर, नाउ यू कैन सी दैट ऐसा है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जब आपका होता है ना, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंदर यू कैन सी दैट 16 डिजिट बड़ा नंबर है आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चंक रहता है उसके अंदर, 4 डिजिट का चंक होता है। आपके आधार कार्ड का नंबर आपने देखा होगा, आधार कार्ड नंबर में भी 4 के डिजिट्स 4 के चंक बनाए रहते हैं उसके अंदर। तो सी इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड मेमोराइज योर क्रेडिट कार्ड नंबर, यू शुड मेमोराइज योर डेबिट कार्ड नंबर, यू शुड मेमोराइज योर आधार कार्ड नंबर, ये एक्सपेक्टेड है आपसे, लेकिन आप नहीं मेमोराइज करते हैं उसको, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल में फोटो अवेलेबल रहता है उसके अंदर। बट क्यों बनाते हैं वैसा? क्योंकि एक तो याद रखने में भी इजी हो जाता है और यूज करने में भी इजी हो जाता है, बराबर ना? आपका आधार कार्ड नंबर किसी को बताना है और वो 4 के चंक में, तो उसको समझने में इजी हो जाएगा, वो आपको भी रीड करने में इजी हो जाएगा। सो इट इज बट ऑब्वियस, ठीक है? तो ये फंडा है इसके पीछे का, ठीक है? देन बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी, साइंस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, एसर, यू, लो, प्लाज्मा। अभी देखो ये वर्ड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, राइट? लेकिन ये वर्ड को अगर आप चंक करोगे, टुकड़े करोगे इस वर्ड के, तो क्या होगा? एसर, यूलो, प्लाज्मिन, एमिया। सो सिंपल है, एसर, यूरो, प्लाज्मिन, एमिया। मैंने आंख बंद करके 2 मिनट में मैंने बाहर कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैंने चंकिंग यूज किया है।
वही अगर आप खाली उसको चंक नहीं करोगे और बोलोगे एसर यूरो, वो पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा उसके अंदर। इट इज वेरी ऑब्वियस, देख लो, आप खुद ट्राई करके देख लो। डायरेक्टली पढ़ने जाओगे ना, डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो पढ़ने में भी दिक्कत हो जाएगी आपको। एसरयूलो प्लाज्मीनेमिया ऐसे पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसको चंक में कर दो ना। अपने एजुकेशन सिस्टम में वो बेनिफिट है, लोग नहीं पूछने वाले कि आपने एसर प्लाज्मीनेमिया का कैसे स्पेलिंग याद में रखा। उनको तो इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने आपने लिखा ना आंसर शीट में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एसर यूलो प्लाज्मिन एमिया, सो सिंपल। एसर यूलो विथ यू कैन से विथ परफेक्ट स्पेलिंग यू कुड एबल टू मेमोराइज इट। आई थिंक यू विल एग्री विथ मी, ब्रेकिंग द वर्ड्स एग्जैक्टली। ठीक है, देन उसके बाद अभी देखो ये असैसिनेशन, अभी एक वर्ड है असैसिनेशन। अभी अब बहुत सारे स्टूडेंट को पूछोगे ना कि असैसिनेशन का, अभी अभी ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट आप में से पहले कुछ उनको पता होगा। असैसिनेशन का मतलब है हत्या करना। महात्मा गांधी जी वॉज असैसिनेटेड। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को पूछेंगे ना तो 90% ऑफ फ्रेंड्स को, 90% ऑफ फ्रेंड्स को असैसिनेशन का मतलब भी नहीं पता है, और उनको स्पेलिंग भी नहीं आता है असैसिनेशन का। आप पूछ के देखो, 90% स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर फॉर असैसिनेशन। तो असैसिनेशन को ध्यान में रखने के लिए मैं चंक कर रहा हूं कि एस, असैसिनेशन को मैंने चंक क्या किया, ए डबल एस इज एस, एस मींस गधा, उसके ऊपर दूसरा एस, देखो ए डबल एस एस एस, गधे के ऊपर दूसरा गधा, उसके बाद में आए, उसके बाद में आए, उसके बाद में नेशन। तो एस एस आई नेशन, एस एस आई नेशन। तो आई डोंट थिंक, और दूसरे बात में अब देखो, अभी तक जो मैंने आपको फैक्टर्स बोले थे ना, मैंने अभी तक आपको फैक्टर्स बोले थे, क्या क्या फैक्टर्स बोले थे कि आप स्टोरी ध्यान में रखो, आप कॉमेडी ध्यान में रखो, आप यूनिकनेस ध्यान में रखो, वियर्डनेस ध्यान में रखो, एसोसिएट करो। तो अभी मैं स्टोरी बना रहा हूं कि एक गधे के ऊपर एक गधा बैठा है, उस गधे के ऊपर मैं बैठा हूं, और मेरा ये जो भी वीडियो है वो वीडियो मेरे पूरे देश में वायरल हो रहा है। ये मेरा वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है, और ये वायरल हो जाने की वजह से मेरे फ्रेंड्स को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया और फ्रेंड्स ने मेरी हत्या कर दी। यू गॉट द स्टोरी। इसको जितना वियर्ड बना सकते हो उतना वियर्ड बनाओ कि गधे के ऊपर एक गधा बैठा है, उसके ऊपर मैं बैठा हूं, मेरा ऐसा वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। और ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरी हत्या कर दी, इसके लिए मेरे वाइफ ने और मेरे हस्बैंड ने मेरी हत्या कर दी। तो भाई देखो, ये वियर्ड है ना, वियर्ड है इसके लिए आपके दिमाग में रहेगा, ये चीज वियर्ड है इसके लिए आपके दिमाग में रहेगी। आप स्ट्रेट फॉर देखो ना, इसीलिए आप देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी होता है आपके बुक के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें वो आपके ये होते हैं, ध्यान में नहीं रहते। लेकिन ऐसे उसको तोड़ मरोड़ के, उसको आप ऐसे वियर्ड तरीके से ध्यान में रखने की कोशिश करोगे तो इट रियली, और देखो आपको मैं चैलेंज देता हूं कि ये स्टोरी आप ध्यान में रखते हो तो यू आर नॉट एबल, आप स्पेलिंग भी ध्यान में रखोगे असैसिनेशन का और मीनिंग भी ध्यान में रखोगे। ऐसे आपको इंग्लिश वर्ड दिया जाए तो स्पेलिंग और मीनिंग ध्यान में रखना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अभी आप, मैं एक हफ्ते के बाद में भी आपको पूछूंगा ना कि असैसिनेशन का स्पेलिंग और उसका मतलब बताओ, यू कैन एबल टू टेल मी द मीनिंग एंड ये स्पेलिंग एंड मीनिंग। ठीक है, तो ये है, ये आपको, और ये खुद R&D करना है। ये देखो, आप लोग इस चीजें, ये मामले में बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं आप लोग, आई नो, वी ऑल आर क्रिएटिव। व्हाट्सएप के ऊपर जैसे क्रिएटिव मैसेज हम लोग बनाते हैं, वैसे क्रिएटिविटी है हमारे अंदर। ये क्रिएटिविटी ऐसे आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो, यू कैन मेक फन ऑफ द स्टडीज ऑल्सो। अभी देखो, देयर इज वन मोर थ्योरी कॉल्ड एज कीवर्ड। अभी हिस्ट्री में कीवर्ड्स आर मैटर्स लॉट, हिस्ट्री में कीवर्ड बहुत मैटर करता है। आई एम डेफिनेटली श्योर ये 5 वर्ड्स के बेसिस के ऊपर यू कैन मेक 5 पेजेस का स्टोरी बना सकते हो इसके ऊपर, बराबर। ये 5 कीवर्ड है, लेकिन ये 5 कीवर्ड्स के बेसिस के ऊपर आप 5 पेज का थ्योरी, ये स्टोरी बना सकते हो, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज कीवर्ड मैटर्स। तो वैसे हिस्ट्री में भी आप कीवर्ड्स ध्यान में रख सकते हो। हिस्ट्री, देयर आर सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कॉल्ड एज हिस्ट्री, पॉलिटी है, उसके अंदर आप कीवर्ड्स ध्यान में रख के याद करने की कोशिश करो। इट माइट बी, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज है, पब्लिक स्पीकिंग है, आपको पब्लिक में बात करनी है, पब्लिक में बात करनी, तो आप क्या करोगे, आप कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स लेके जाओगे स्टेज के ऊपर, दैट्स इट, एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट। तो इसको बोला जाता है कीवर्ड्स मेथड। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कीवर्ड्स मेथड। देन देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड एज मेमोरी रूट टेक्निक। अभी मेमोरी रूट टेक्निक क्या होता है, ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको। आपके ब्रेन में ना एक चेन आप बना सकते हो, यू कैन मेक अ चेन इन योर ब्रेन। अभी मेमोरी रूट टेक्निक क्या होता है, अभी देखो, आप में से बहुत सारे लोग शायद मुंबई से नहीं होंगे, लेकिन जो लोग मुंबई के हैं उनको कुछ स्टेशंस याद रखते होंगे। स्टेशंस, फॉर एग्जांपल, सपोज आई स्टे इन न्यू पनवेल। न्यू पनवेल है तो न्यू पनवेल है, उसके बाद में मानसरोवर स्टेशन है, मानसरोवर स्टेशन के बाद में
पनवेल है, उसके बाद में खांडेश्वर स्टेशन है, खांडेश्वर के बाद में मानसरोवर रेलवे स्टेशन है, मानसरोवर के बाद में है खारघर, खारघर के बाद में है क्या है, खारघर के बाद में सीबीडी वेलापुर, सीबीडी वेलापुर के बाद में ये सीवुड्स, सीवुड के बाद में नेरुल, नेरुल के बाद में जुईनगर, जुईनगर के बाद में क्या है, जुईनगर के बाद में क्या है, सानपड़ा, सानपड़ा के बाद नहीं जुईनगर के बाद में, अच्छा वो थाने रूट से जा रहे हो, दैट इज डिफरेंट रूट, मैं सीएसटी रूट से जा रहा हूँ। ओके, तो जुईनगर है, जुईनगर के बाद में आएगा मेरा सानपड़ा, सानपड़ा के बाद में वाशी, वाशी के बाद में आप बोल सकते हो कि आगे का जो भी स्टेशन है अपना, राइट। तो लास्ट में सीएसटी। तो देखो सबके माइंड में एक मेमोरी रूट है। आप घर का एग्जांपल ले लो ना, आप घर का एग्जांपल ले लो। सपोज आप अभी बेडरूम में बैठे हो, तो बेडरूम, बेडरूम के बाद में बेड, बेड के बाद डोर, डोर के बाद में बाथरूम, बाथरूम के बाद में टॉयलेट, उसके बाद में दूसरा बेडरूम, दूसरा बेडरूम के बाद में दूसरा डोर, उसके बाद में किचन, उसके बाद में फ्रिज, उसके बाद में गैस, उसके बाद में हॉल, उसके बाद में आप बोल सकते हो कि हॉल के बाद में टीवी, उसके बाद में फर्नीचर, सोफा, उसके बाद में डोर, डोर के बाद में आप नीचे जा रहे हो, दैट इज स्टेप्स, और लिफ्ट, लिफ्ट के बाद में बिल्डिंग के नीचे चले गए, वहां पे देयर इज अ साइकिल, साइकिल के बाद में किराना स्टोर इज देयर, किराना के बाजू में आप देखोगे सब्जी वाला है, सब्जी वाले के बाजू में मिठाई वाला है, उसके बाद में दूध वाला है, उसके बाद में एक ऑटो स्टैंड है। तो ऐसे आप कितने बना सकते हो, देयर इज नो लिमिट। और ये याद करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके अंदर। It is not necessary to memorize those things. आप ऐसे 100, 200 देखो, it is possible to make a list of 100 का आप लिस्ट बना सकते हो, that is called as memory root technique. और देन आप इसका यूज करके you can memorize a list of 100, आप 100 लिस्ट आप मेमोराइज कर सकते हो। अभी मेरे I do conduct some workshops, तो वर्कशॉप में ऐसा है कि मैं 100 डिजिट नंबर जो पब्लिक ने बनाया है वो मैं मेमोराइज करके दिखाता हूँ, उसके पीछे का ये राज है। इसके बेसिस के ऊपर वो मैं 100 डिजिट नंबर मेमोराइज करके बताता हूँ लाइव पब्लिक के सामने। तो नथिंग बिग थिंग, क्योंकि आप भी बना सकते हो, उसमें बड़ी बात क्या, आप भी 50 प्लेसेस 100 प्लेसेस आप अपने घर से लेके रेलवे स्टेशन तक ले लो, 50 और 100 प्लेसेस, इट्स वेरी इजी। ओके, देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एज अ लिंक मेथड। आप एक चीज दूसरी चीज के साथ लिंक करके दे सकते हो। लिंकिंग मेथड के ऊपर डायरेक्टली प्रैक्टिकल बता दूंगा। अनदर मेथड इज स्टोरी टेलिंग। आपको अगर कुछ थ्योरी याद में रखना है, अगर आपको कोई स्टोरी ध्यान में रखनी है, मतलब कोई थ्योरी ध्यान में रखनी है, तो आप उसका स्टोरी बना सकते हो। ओके, नाउ उसके बाद में स्टोरी के बाद में बॉडी निमोनिक्स। आप बॉडी निमोनिक्स याद रख सकते हो, नो लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, सब साइंस में आपने देखा होगा, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये बॉडी निमोनिक्स उसको बोला जाता है। देन these things are called as acronyms and mnemonics। देखो ये खाली पढ़ना नहीं है, अप्लाई करना है। कल से आपका क्रिएटिव थिंकिंग चालू होना चाहिए। जब आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट लोगे, आप ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, देखो ज्योग्राफी में बहुत सारे ये mnemonics आप यूज कर सकते हो, हिस्ट्री में यूज कर सकते हो, साइंस में यूज कर सकते हो। विबग्योर आपको पता है किसका ये है, एक्रोनिम किसका आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। पैवपैनिक किसका है, बताया क्या, पैवपैनिक, बोडमास, बोडमास आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टी मैथमेटिक्स का है बोडमास। ये पैवपैनिक किसका है, पैवपैनिक इंग्लिश का है। इंग्लिश का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोवर्ब, एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। तो पैवपैनिक समझा, पैवपैनिक इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछूंगा ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि यू विल, मतलब आपको इजीली मेमोराइज नहीं होगा पार्ट्स की, क्या था सर, पहले वर्ब था, उसके बाद में एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, ऐसे आप शायद इट माइट बी पॉसिबल कि आपको पूरा याद ना आए, लेकिन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और पैवपैनिक ध्यान में रखोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेमोराइज द पैवपैनिक। उसके बाद में देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है, तो एक अलग टाइप का स्टोरी बनाते हैं एक्रोस्टिक्स, जैसे कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जाज। तो अभी ये क्या है, किसी को पता है क्या ये क्या है, किसके लिए बनाया होगा ये एक्रोस्टिक, सोलर सिस्टम के लिए। वेरी गुड। तो माइज आप बोलो, अभी सोलर सिस्टम बोलो ज्योग्राफी में, माइज क्या है, माई पहला एम किसके लिए है, मार्स, मार्स है ना एम सोलर सिस्टम में, बोलो सिक्वेंशियली, मार्स, बाद में वेनस, अर्थ, अर्थ है, उसके बाद में मर्क्यूरी, जुपिटर, उसके बाद क्या है, हाँ मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, बराबर। तो ये चीज है। तो देखो आपका क्या प्रॉब्लम है पता है क्या, देखो स्टूडेंट बहुत सारे लोगों का क्या है, बहुत सारे लोगों को इजीली दे कैन मेमोराइज, लेकिन नॉट नेसेसरी आप सब लोग मेमोराइज कर सकते हो, भूलने भूल जाते हैं। लेकिन ये चीज नहीं बोलोगे ना मैं, और देखो ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, तो माइट भी पॉसिबल कि आप भूल जाओ, लेकिन आप खुद से भी तो बना सकते हो, खुद से बना लो ना। आप
देखो कुछ भी बना सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन मेक। एम के लिए कुछ भी ले लो, एम के लिए कितने सारे वर्ड्स हैं, यू कैन एब्सोल्युटली टेक एनीथिंग। मैंगो ले लो, वी के लिए कुछ अलग ले लो, कुछ तो कुछ भी स्टोरी बना सकते हो, नॉट अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोस्टिक, यू कैन अलग वे से आप सीरीज लिस्ट ध्यान में रख सकते हो इसको। देन देयर इज अ राइम नेमोनिक्स है, एक पेगिंग टेक्निक मैं बोल रहा हूँ, पेगिंग टेक्निक कि वेरी गुड, ऐसे एग्जैक्टली, माय वेरी एक्सीलेंट मैम जस्ट सर्व्ड अस नोट्स, ये भी ठीक है उसके अंदर। तो अभी देखो राइम निमोनिक्स भी है उसके अंदर कि आपको कोई लिस्ट ध्यान में अगर रखनी है तो लिस्ट, विजुअल निमोनिक्स है, वोकैबुलरी है। अभी थोड़ा मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, बाद में मैं बता दूंगा आपको। अभी वोकैबुलरी, सपोज आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी अच्छा करना है आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि सपोज कजोल इज अ वर्ड, कजोल वर्ड है, कजोल का मतलब है टू कन्विंस समवन विद स्वीट वर्ड्स, कजोल का मतलब है टू कन्विंस समवन विद स्वीट वर्ड्स। तो अब ये कजोल को आप क्या करोगे, तो देखो आपको है ना ट्विस्ट करना है चीजों को। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रैफिक है आपके रास्ते के ऊपर, बहुत ए से लेके बी तक जाना है, देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रैफिक इज देयर। लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे, आप अगर कुछ ऑल्टरनेट वे ले रहे हो तो इट माइट बी, ऑल्टरनेट शॉर्टकट ले रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप जल्दी पहुंच जाओगे। यही चीज यहाँ पे है, सीधे सीधे ध्यान में रखेंगे तो आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधे सीधे ध्यान में। इसीलिए तो नॉर्मल इंसिडेंसेस आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी एकदम एक्साइटिंग इंसिडेंस होता है वही आपका ब्रेन याद करता है उसके अंदर, राइट? वही है ना। तो कजल को आप क्या करोगे, कजल को ट्विस्ट कर दो, कजल को काजल बना लो। एंड यू नो दैट काजल इज अ सेलिब्रिटी, तो काजल वांट्स टू वर्क इन अ मूवी एंड फॉर दैट ही इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी इज ट्राइंग टू कन्विंस हर इन अ स्वीट वर्ड्स। हो गया, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया काजल का, ठीक है। यहाँ पे वर्ड भी ध्यान में हो जाएगा, मीनिंग भी याद में हो जाएगा, खाली सी के जगह पे आपने क्या यूज किया है। एंड वो स्टोरी, मैंने स्टोरी क्रिएट किया ना यहाँ पे, सेम स्टोरी, असैसिनेशन का स्टोरी आपको याद है, जेडेड का स्टोरी। व्हाट डू मीन बाय जेडेड? जेडेड का मतलब है जेडेड इज अ टायर्ड पर्सन, लेकिन जेडेड इज नॉट अ वेरी कन्वेंशनल वर्ड। तो जेडेड को टायर्ड पर्सन कैसे ध्यान में रखोगे, आप क्या करोगे, जेडेड। अभी जेडेड को मैं बोलूंगा कि जेडेड मतलब जाड़ा, हिंदी में और मराठी में उसको जाड़ा बोलते हैं। तो आपका कोई जाड़ा एक फ्रेंड रहेगा, उसको नजर के सामने लेके आओ, और वो जाड़ा फ्रेंड को भागाने के लिए आप बोल रहे हो, रन करने के लिए बोल रहे हो, और वो पूरा थक के आपके सामने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जेडेड। जडेजा भी बोल सकते हो आप, कि एक जडेजा नाम का प्लेयर था 1996 में, अभी नया जडेजा भी है, लेकिन सपोज मैं पुराने जडेजा की बात कर रहा हूँ, अजय जडेजा की। तो अजय जडेजा वाज अ प्लेयर, और वो अभी बूढ़ा हो चुका है, अभी वो थक गया है, तो उसका थका हुआ चेहरा आपके सामने आ रहा है। तो जेडेड मीन्स टायर्ड। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब इज वेरी हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मतलब क्या है, डिलीजेंट का वर्किंग इज हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट को तोड़ कर दो ना, डिलीजेंट को क्या तोड़ोगे, दिल्ली एजेंट। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एक दिल्ली का फ्रेंड था, वॉज एन LIC एजेंट, दिल्ली का एजेंट, दिल्ली का मेरा फ्रेंड था, वो LIC एजेंट था, बहुत हार्ड वर्किंग था, वो पॉलिसी बेचता था वो सब जगह पे। ये मैंने मेरा स्टोरी बना लिया, आप आपका स्टोरी बना लो। दिल वाले के साथ कोई स्टोरी बनानी है तो बना लो उसके साथ, दिल वाले के साथ स्टोरी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो अभी ये थोड़ा सा ये देख लो, अभी ये हाउ टू मेमोराइज द मैप्स। अभी देखो मैप्स तो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, लेकिन प्रॉब्लम है कि सर मैप्स ध्यान में रखना इज अ हेडेक इन दैट केस। तो अभी हेडेक है तो उसके लिए आप स्टोरी बना सकते हो ना। अभी स्टोरी कैसे बना सकते हो वो देख लो। उसको आप पहले डिस्टॉर्शन नाम का कंसेप्ट है, फर्स्ट डिस्टॉर्ट करो, डिस्टॉर्ट के बाद में आप ये स्टोरी मेमोराइज करने का काम करो, डिस्टॉर्शन करके स्टोरी मेमोराइज कर लो। फॉर एग्जांपल क्या है, सपोज अभी मुझे ध्यान में रखना है तो मैं क्या करूंगा, आसाम। अभी मैं आसाम को क्या, आसाम को मैं फिर से एक काम कर लेता हूँ, एस को एस ले लेता हूँ मैं, एस मीन्स गधा, एस मीन्स डोंकी, तो डोंकी ले लिया। आसाम के नीचे क्या है, असम के नीचे है मेघालय, मेघालय को क्या लिया, मेघालय को मेघ ले लिया, मेघ मीन्स क्या है, मेघ मीन्स बादल, ओके। उसके बाद में क्या है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा को क्या ले लू मैं, त्रिपुरा को मैं त्रिशूल ले लेता हूं। त्रिपुरा को क्या लिया मैंने, त्रिपुरा को त्रिशूल ले लिया। तो गदा है, गदा कहां से आ रहा है, गदा आ रहा है मेघालय से। ट्रिप भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड जानवी, ट्रिप भी ले सकते हो। तो मैं ऐसे कर रहा हूं कि गदा में एग्जांपल दे रहा हूं, गदा है, गदा कहां से आ रहा है, मेघ से आ रहा है, मेघ से उसके गधे के हाथ में क्या है, गधा एक ऐसा गधा है कि उसके हाथ में त्रिशूल है, गधे के हाथ में एक त्रिशूल है। लेकिन वो, और अभी देखो मैं सॉरी, अभी मैं किसी का यहाँ पे ये नहीं करना चाहता, किसी भगवान का अपमान नहीं करना चाहता, बट थोड़ा कि स्टोरी मेमोरेबल करना है तो थोड़ा इसके लिए कर रहा हूँ। तो राम, तो मैं बोल रहा हूँ कि राम, तो ऐसा है कि डोंकी इज देयर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे किसी का ये नहीं करना है, पर अभी वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे जा रहा है इसके लिए। तो डोंकी इज देयर, डोंकी के ऊपर एक त्रिशूल है, और त्रिशूल किसके हाथ में है, अभी राम के हाथ में त्रिशूल है। क्यों, क्योंकि वियर्ड स्टोरी बन रहा है ना, वियर्ड स्टोरी बन रहा है, इसके लिए क्या होगा, वियर्ड स्टोरी बन रहा है तो आपका वो ध्यान में रह जाएगा ना, इट इज वेरी सिंपल।
तो राम है, राम के हाथ में त्रिशूल है, राम इज सिटिंग ऑन, या बोलो या विथ बोलो, चलो ऑन नहीं बोलता, वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल करते हैं। तो उसके साथ एक डोंकी है, डोंकी के ऊपर एक त्रिशूल है, त्रिशूल राम के हाथ में है, और राम के हाथ में दूसरे हाथ में एक मणि भी है, राम के दूसरे हाथ में एक मणि भी है। और वो मणि किसका है? मणि किसका है? वो मणि नाग का है। किसका मणि है? वो नाग का एक मणि है। और नाग कहां से आया है? नाग आया अभी अरुणा। तो एक आपकी कोई अरुणा नाम की फ्रेंड रहेगी, या अरुणा नाम की कोई हीरोइन है, चलो एक अरुणा नाम की, आई नो की एक बॉलीवुड में करती है अरुणा ईरानी, एक पता होगा आपको अरुणा ईरानी, या आपका कोई अरुण नाम का फ्रेंड, अरुण इज अ वेरी कॉमन वर्ड, तो अरुण नाम का कोई फ्रेंड है, उसको रिलेट कर दो, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। तो पहले क्या था बोल दो, अभी यहाँ पे क्या था पहले, चैट बॉक्स में बोलो, पहले कहां से शुरुआत की थी मैंने? पहले मैंने एस से शुरुआत की थी, एस मतलब आसाम से शुरुआत की थी मैंने, ठीक है। अभी आसाम के बाद में ये एस कहां से आया था? एस कहां से आया था? मेघालय से आया था। उसके बाद में एस के ऊपर क्या था? एस के ऊपर क्या था? एस के ऊपर त्रिशूल था, त्रिशूल मतलब त्रिपुरा था, उसके ऊपर वो त्रिशूल, गधे के ऊपर त्रिशूल था, लेकिन त्रिशूल किसके हाथ में था? राम के हाथ में था। राम मतलब क्या था? वो मणिपुर था, ठीक है, मणिपुर था। मणिपुर बाद में राम जो था, राम के दूसरे हाथ में क्या था? राम के दूसरे हाथ में क्या था? राम के दूसरे हाथ में मणि था, नहीं, ये मिजोरम था, मिजोरम, ये मिजोरम कंफ्यूजन, मिजोरम था, राम था, और राम के दूसरे हाथ में क्या था? राम के दूसरे हाथ में मणि था। और मणि कहां से आया था? मणि आया था नाग से आया था। नाग मतलब क्या? नागालैंड। नाग मतलब क्या था? ऑब्वियसली नागालैंड था नाग, तो आप नागालैंड था। उसके बाद में लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये आप सब स्टोरी इस तरीके से बना सकते हो। आप खुद का स्टोरी बना लो, नॉट नेसेसरी मैं मेरे कैरेक्टर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक योर ओन स्टोरी। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि ये देखो, अब ये कोई भी इंडिया का कोई भी मैप आप इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो इसलिए, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अभी सपोज महाराष्ट्र है, अभी मैं टाइम नहीं है इसके लिए बता रहा हूँ। सपोज महाराष्ट्र है, दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र। अभी मैं महाराष्ट्र के बाजू वाले जो ये स्टेट है ना, उसको मैं मेमोराइज करवाता हूँ। तो महाराष्ट्र में मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई तो एक महाराज है, कोई तो ऐसा कोई महाराज है, कोई महान महाराज बोल देते, चलो नॉट नेसेसरी शिवाजी वगैरह को मत लो, एक कोई तो एक ऐसे जनरल महाराज है। अब ये जनरल महाराज, अब ये गुजरात है ना, गुजरात को मैंने रात ले लिया। जनरल महाराज कहाँ पे गए? रात के टाइम पे गुजरात ट्विस्ट कर दिया, मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, और डिस्टॉर्ट करके मैं स्टोरी बना रहा हूँ। तो महाराज रात गुजरात, मध्य प्रदेश का मध्य का मतलब क्या होता है? मध्य का मतलब होता है अल्कोहल, ओके। तो देर इज सम महाराज एक बहुत ही किंग पर्सन है, एक महाराज है कोई, तो वो महाराज रात के टाइम पे कहाँ पे जा रहा है? रात के टाइम पे क्या पीने जा रहा है? मद्य पीने जा रहा है। मध्य मतलब मदिरा, मध्य प्रदेश को मैंने मध्य ले लिया। मध्य मीन्स अल्कोहल। कितने रुपए में लिया उसने अल्कोहल? कितने रुपए में? छत्तीसगढ़ मतलब कितने रुपए में उसने अल्कोहल लिया? 36 रुपीज में द महाराज परचेज द अल्कोहल। उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में अल्कोहल के अंदर लोग पानी मिक्स करते हैं। महाराज ने क्या मिक्स किया? महाराज ने तेल मिक्स किया। तेल स्टैंड्स फॉर तेलंगाना। महाराज ने क्या मिक्स किया? महाराज ने तेल मिक्स किया, दैट इज तेलंगाना। उसके बाद में अल्कोहल विथ तेल, ही स्टार्टेड डूइंग नाटका। अल्कोहल विथ तेल, ही स्टार्टेड डूइंग नाटका। तो नीचे का जो है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कर्नाटका बोलेंगे। नीचे जो है उसको क्या बोलेंगे? कर्नाटक बोलेंगे, नाटका, कर्नाटका। और उसके बाद में महाराज नाटक करते करते कहाँ पे चले गए? दे बोले कि कर्नाटक इज नॉट अ गुड प्लेस टू हैव सच काइंड ऑफ फन। तो फन करना है तो कहाँ पे चले जाओ? गोवा चले जाओ, दैट्स इट। तो इन दैट वे यू कैन यूज अ डिस्टॉर्शन मेथड एंड स्टोरी मेथड टू मेमोराइज एनीथिंग। कुछ भी आप मेमोराइज करने के लिए, अभी देखो ये वियर्ड बनाने की कोशिश करो। आप वियर्ड बनाओगे ना, जितना वियर्ड बनाओगे उतना आपको ध्यान में रह जाएगा। वियर्डनेस है इसके अंदर, ठीक है। पढ़ाई को कभी आपको कंटाला आ जाए तो ये चीज अप्लाई करते रहो आप, ओके। सोर्सेस ऑफ विटामिन ए देख लो, विटामिन ए के सोर्सेस बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अभी विटामिन ए के सोर्सेस है ना, तो अभी मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ। तो ये देखो अभी प्रॉब्लम क्या है? विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए आपका ब्रेन इजीली कैप्चर नहीं करता। क्यों नहीं कैप्चर करता? आपने देखा है क्या विटामिन ए? आपने विटामिन ए देखा है क्या? आपने नहीं देखा है विटामिन ए। इसके लिए यू कैनॉट एबल टू कैप्चर द विटामिन ए इजीली। तो मैं क्या कर रहा हूँ? विटामिन ए को मैं ले रहा हूँ आमिर खान। विटामिन ए को क्या लिया मैंने? आमिर खान ले लिया मैंने एक बॉलीवुड कैरेक्टर बना दिया मैंने उसके अंदर। व्हाई? बिकॉज बॉलीवुड कैरेक्टर हम इजीली ध्यान में रख सकते हैं। तो ए स्टैंड्स फॉर आमिर खान। तो अभी ध्यान में रखो, विटामिन ए का सोर्स है लीवर। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ लीवर। अभी देखो लीवर को मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया। लीवर को क्या डिस्टॉर्ट कर दिया? पहले देखो, पहले मैंने विटामिन ए को किया था, आमिर खान ले लिया। आमिर खान गया लीवर के पास, लीवर को मैंने जॉनी लीवर कर दिया मैंने। आमिर खान किसके पास गया? जॉनी लीवर के पास गया। अभी जॉनी लीवर के जो आईज है ना, आईज आर वेरी बिग
लेकिन एक वियर्ड चीज है कि आइस के जगह पे आइस नहीं है, वहां पे एक्स है। आइस के जगह पे एक्स नहीं, आइस नहीं है, वहां पे क्या है, वहां पे एक्स आर देयर ऑन द आईज ऑफ जॉनी लीवर। बहुत बड़े बड़े आइस थे और वो आइस नहीं थे, वहां पे एक्स थे। तो आमिर खान को वो एक्स अच्छे नहीं लगे, तो आमिर खान ने वो एक्स ब्रेक कर दिया। क्यों? एक्सट्रीम इमोशंस, वायलेंस दिखा रहा हूं मैं, वायलेंस दिखा रहा हूं तो स्टोरी ध्यान में रह जाएगी। तो एक्स है, एक्स को उसने ब्रेक कर दिया, उसके आंखों को फोड़ दिया, उसने आंखों को फोड़ दिया, उसके अंदर ब्लड नहीं बाहर निकला, उसके अंदर से रेड आवाज ब्रेक होता है। ऑरेंज वेजिटेबल्स, रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल उसमें से बाहर निकल रहे हैं। चैट बॉक्स में देख लो, ठीक है। तो उसके आंखों में से ब्लड बाहर नहीं निकला, जॉनी लीवर के आंखों में से, उसमें से रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल बाहर निकले। रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल बाहर निकलने के बाद आमिर खान ने सोचा कि हम लोग ये बेच देते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल के मार्केट में गया। कहां पे गया वो? ग्रीन वेजिटेबल के मार्केट में गया। ग्रीन वेजिटेबल के मार्केट में उसने वो रेड एंड येलो वेजिटेबल्स बेचे, और बेचने के बाद जो पैसा आया उससे उसने कर्ड परचेस कर लिया, दही ले लिया उसने। तो ये स्टोरी बन गया आपका। इट इज वेरी इजी स्टोरी। आमिर खान विटामिन ए, जॉनी लेवर एक्स, उसके आंखें थे तो एक्स, आंखों को ब्रेक किया, उसमें से ब्लड निकला, ब्लड नहीं निकला तो रेड एंड येलो वेजिटेबल्स बाहर निकले। रेड एंड येलो वेजिटेबल्स को उसने ग्रीन वेजिटेबल के मार्केट में, तो ग्रीन वेजिटेबल के मार्केट में बेचा, उसमें से जो पैसा उसमें से उसने कर्ड परचेस कर लिया। तो दिस इज हाउ इट शुड गो। ये और बहुत सारे ट्रिक्स है, ऐसे में इतने इजीली नहीं बता सकता एक सेशन में, मैं डेफिनेटली अलग और एक सेशन लूंगा आपको। तो ये हिस्ट्री के डेट्स भी आप कैसे याद रखने में बता दूंगा आपको उसके अंदर, ठीक है। मेडिकल साइंस के जो मेडिकल साइंस ध्यान में रखना है, वो मेडिकल साइंस भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे ड्रीम है, कंजेनिटल मायोपैथी फीचर्स पूछे गए हैं, तो ड्रीम्स मैं क्या करूंगा, कंजेनिटल मायोपैथी फीचर्स ड्रीम्स में याद कर दूंगा। तो क्या, डोमिनेंटली इनहेरिटेड, आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्सेड इन डिक्रीजेस, एंजाइम्स नॉर्मल, अपैथेटिक फ्लॉपी बॉडी, माइलस्टोन डिलेड, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स वाइज यू कैन मेमोराइज इट। उसके बाद में दैट्स इट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद का जो भी है मैं आपको मेरे नेक्स्ट सेक्शन में आपको बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। एक नेक्स्ट सेशन अभी आ रहा है, तो दैट्स इट। इसका या थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बाय सर। Bye sir, 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 bye sir. Bye all of you.